Good morning, students. How are you all? Fine. Good. I'm also fine and good. So, today is my turn to tell you the story. Okay. I'll tell you a story and I have the book for you. Okay. I will tell you two stories. मैं आपको दो stories सुनाऊंगी और ये book मैं आपको आपके सामने रखूंगी so that later on also you can read the story. ठीक है, आप बाद में भी ये stories को पढ़ सकते हो and this will be really good for you. Okay, so the first story I am going to tell you, that is Little Red Hen. Okay, this one is Little Red Hen. Okay, in this story you will learn that the person who works hard, they get the good things in their life. Okay, and then I have another one. It's very interesting story of a dragon. Okay, so here is a Dom's dragon. Okay, so shall we start the story time? Okay, so I'll show you the book also and I'll tell the story also. Okay, so so students, the very first story I'm going to start is Little Red Hen. Okay, so let us turn the pages and see. Little Red Hen. See here, Little Red Hen. Picture only is showing that she is really a hard working person. Now we can see in the story as the story progresses. Okay, so the very first one. See here, what you can see in this picture. There is a dog, the dog. There is a cat, the cat. There is a flour, the flour. आटा होता है ना बेटा, जब हम कनक पिसवाते हैं, उसको पिसवाते हैं तो आटा बनता है ना, जिससे रोटी बनती है, वो है. Okay, then the wheat. Okay, this is the wheat and this is Little Red Hen. This one is Little Red Hen and this is the rat. Okay, so and the bread. Okay, यहाँ से wheat का पौधा होता है, उससे हम wheat लेते हैं and then we make the flour and then we make the bread. Okay, so let's start the story. I hope the all characters you have understood in this. We have a dog, we have a cat, we have a little red hen and we have a rat also, and then here is the wheat which converts into the flour and then from flour the bread. Okay, so let's start. Okay, now will you help me plant the wheat? Asked Little Red Hen. हम Little Red Hen ने पूछा इनसे कि क्या हम पौधा wheat का प्लांट लगा सकते हैं. Then no, said the rat, the cat and the dog. Rat, cat और dog ने उसको मना कर दिया हेल्प करने के लिए. ठीक है, जैसे ही hen ने पूछा कि क्या हम प्लांट लगा सकते हैं wheat का, तो इन्होंने मना कर दिया. Okay, you can see that she is asking and they are just lazy people sleeping. Okay, so next page again. Then I will plant it all by myself, said Little Red Hen. तो Little Red Hen ने बोला कि ठीक है, मैं खुद ही लगा लेती हूँ. And she did it. और उसने सारे प्लांट लगा लिए. ठीक है, all the plants उसने लगा लिए. And then again. Now, will you help me cut the wheat? Asked Little Red Hen. No, said the rat, the cat and the dog. देखा, ये आलसी लोग जो हैं इन्होंने नहीं किया. रेड हेन ने बोला कि चलो अब तो प्लांट्स हो गए हैं, क्या हम इनको कट कर लें हम सब मिलके. उन लोगों ने फिर से रैट, कैट और डॉग ने मना कर दिया. ठीक है, सो विल कम टू द नेक्स्ट पेज. Then I will cut it all by myself, said Little Red Hen, and she did. Okay, अब फिर से लिटिल रेड हेन ने
खुद ही कट किया। देखो यू कैन सी दैट शी इज डूइंग ऑल बाय हरसेल्फ ओनली, ऑल द थिंग्स बाय हरसेल्फ ओनली। सारा कुछ वो खुद ही कर रही है ना बेटा। ओके, देन अगेन व्हाट हैपेंड हियर नेक्स्ट as the story progresses. Will you help me make the flour? Asked little red hen. No, said the rat, the cat, the dog. जब फिर से लिटिल रेड हैन ने इनसे पूछा कि चलो अब मैं वीट कट करके भी लाई हूँ और इसको अब हम फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, ठीक है। तो फिर से इन आलसी ने क्या बोला, रैट, कैट और डॉग ने नो, नहीं करना है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि यहाँ पे देन लिटिल रेड हैन ने क्या बोला, देन आई विल मेक इट ऑल बाय माई सेल्फ, सेड लिटिल रेड हैन एंड शी डिड इट। उसने बोला ठीक है मैं खुद ही कर लेती हूँ, और उसने कर भी लिया, ठीक है। अब जो है फिर लिटिल रेड हैन ने इन तीनों से पूछा, विल यू हेल्प मी मेक द ब्रेड? आस्क्ड लिटिल रेड हैन। नो, सेड द रैट, द कैट एंड द डॉग। अब लिटिल रेड ने बोल दिया कि मैंने पौधा लगा दिया, उसमें से वीट के पौधे भी कट कर लिए, वीट निकाल लिया, उससे फ्लोर बना दिया, अब क्या हम इससे रोटियां बना सकते हैं सभी लोग मिलके? तो फिर से रैट, कैट और डॉग ने बोला नहीं, नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर अब हम आगे आते हैं एंड विल सी द स्टोरी। देन आई विल मेक इट ऑल बाय माई सेल्फ, सेड लिटिल रेड हैन। अब लिटिल रेड हैन ने बोला ठीक है मैं सब कुछ अपने से कर ली, तो अब मैं ये भी अपने से कर लेती हूँ, एंड शी डिड इट, ठीक है। देखो ये देख रहे हैं, उसने कर लिया, ब्रेड भी बना लिया, मतलब रोटी भी बना ली। अब देखो, विल यू हेल्प मी ईट द ब्रेड? विल यू हेल्प मी ईट द ब्रेड? आस्क्ड लिटिल रेड हैन। लिटिल रेड हैन ने पूछा कि क्या आप लोग सब इसको खाने में मेरी मदद करोगे? तो व्हाट इज द आंसर? सी, टिल नाउ दे आर सेइंग नो ना, हियर इज यस, सेड द रैट, द कैट एंड द डॉग। अब रैट, कैट और डॉग ने बोला हाँ बिल्कुल खाएंगे। देखो कैसी ललचाई नजरों से देख रहे हैं ब्रेड को कि हाँ खाने के लिए तो हम आ जाएंगे, काम नहीं करवाएंगे। ओके, नो नाउ, नो सेड द लिटिल रेड hen. No, said little red hen, I will eat it all by myself, and she did it. और उसने बोला कि नहीं, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारा खुद ही खा लूँगी, और उसने खा लिया। तो इस तरह से आलसी लोगों को एक सबक मिल गया ना। तो ये स्टोरी के सारे पेजेस हैं, आप बार बार इसको पढ़ सकते हो। इस वीडियो को ठीक से रखना बेटा, whenever you need to read it you can read this, okay? So hope children that you have enjoyed listening this story, Little Red Hen. You can read also, okay? Shall we start with the second one story, the Dom's Dragon? Okay, we'll start this story now. Okay, so students, we are starting Dom's Dragon. Okay, this is the cover page. You can see a dragon, a boy. This boy name is Doms and this is a dragon. Okay, we'll find out what is the name of this dragon. Okay, so let's start. So there is a boy having an egg. Okay, now let us start and we will tell. Okay, one day Dom saw a little red egg. It was a little bit hot and it glowed. Dom hid the little red egg under his bed. Okay, you can see this boy is hiding the red hot egg under his bed. Okay, so now इट्स ये जो है एक बड़ा सा एग है जो बहुत ही गर्म है, रेड कलर का है। इसको ये बॉय जो है जिसका नाम डॉम है अपने बेड के अंदर
इसको छिपा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। ओके, द नेक्स्ट डे द एग हैच्ड, अ लिटिल रेड ड्रैगन हैच्ड आउट, शी वॉज अ लिटिल बिट हॉट एंड शी ग्लोड, I will call you Glow, said Dom. Okay, तो नेक्स्ट डे द एग हैच मतलब एक फूड गया और उसमें से एक छोटा सा ड्रैगन निकली और वो बहुत ही हॉट थी और ग्लो कर रही थी। तो इसने डॉम ने उसका नाम ग्लो रख दिया, ठीक है। उसने इसका देखो एग में निकल से एक ड्रैगन निकली जो रेड एंड हॉट थी, तो उसका नाम डॉम ने ग्लो रख दिया। नाउ अगेन ऑन नेक्स्ट पेज वी कैन सी, यू मस्ट हाइड अंडर द बेड, सेड डॉम, और आई विल हैव टू टेल द किंग अबाउट यू। दैट नाइट डॉम्स बेड वॉज नाइस एंड वार्म। ओके, सी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ड्रैगन को बॉय ने बोला कि मेरे बेड के नीचे छिप जाओ, नहीं तो मुझे किंग को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ड्रैगन नीचे बेड के छिप गई और उस दिन उसका बेड जो था वो बहुत ही गर्म और अच्छा था, मतलब अच्छा लग रहा था, उसको फील अच्छा हो रहा था। ओके, नेक्स्ट वन, बट ग्लो वॉज ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, यू मस्ट हाइड इन द बाथरूम, said Dom, or I will have to tell the king about you. अब जो ग्लो है वो बड़ी बड़ी और भी बड़ी होती जा रही थी। तो डॉम ने बोला कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मेरे बेड के नीचे नहीं छिप सकती, तो अब नाउ यू हैव टू हाइड इन द बाथरूम। सो नाउ दिस ड्रैगन ग्लो इज हाइडिंग इन द बाथरूम, बाथरूम में हाइड कर दी, ठीक है। ओके, नहीं तो उसने बोला कि नहीं तो मुझे किंग को बताना पड़ेगा। सो विल कम टू द नेक्स्ट पेज। द नेक्स्ट डे देयर वॉज वेरी हॉट वाटर इन द बाथरूम, द टॉवेल्स वेयर नाइस एंड वार्म टू। अब नेक्स्ट डे जो है बाथरूम जो था वो बहुत ही गर्म था, टॉवेल्स भी बहुत ही अच्छे और गर्म हो गए थे। देखो यहाँ पे ये हाइड कर रही है एंड ही इज टेकिंग बाथ एंड विथ अ हॉट वाटर। ओके, now when we now next time, but glow was growing bigger and bigger, you must hide in the kitchen, said Dom, or I will have to tell the king about you. अब डॉम को लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी हो गई है, बिकॉज शी वॉज ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, वो तो बड़ी होती जा रही थी, तो उसको उस डॉम ने किचन में छिपा दिया, ठीक है। और उसको बोला कि अगर यहाँ पे नहीं छिपोगे तो मुझे किंग को बताना पड़ेगा, ठीक है। देन नाउ द नेक्स्ट डे देयर वॉज नाइस हॉट फूड इन द किचन एंड ऑन नाइस वार्म प्लेट्स। अगले दिन जो है बहुत ही गर्म अच्छा खाना था और जो प्लेट्स थे वो भी गर्म थे, क्योंकि वहाँ पे कौन था, ग्लो था, जो कि हॉट एंड रेड था, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लो you are getting too big and too hot, said Dom. We will have to tell Mum. You have a dragon? Mama was surprised. You have a dragon? Said Mum. We will have to tell the king about her. अब मम्मा जो है वो परेशान हो गई। सी मम्मा हाउ शी इज सरप्राइज्ड। ओके, मम्मा सरप्राइज हो गई कि अरे डॉम तुम्हारे पास एक ड्रैगन है और तुम इतने दिनों से छिपा के रखे हो, पर ये तो बहुत बड़ी है, इसके बारे में तो हमको किंग को बताना ही पड़ेगा। नाउ दे वेंट टू द किंग। ओके, नाउ सी हियर द किंग इज सिटिंग, ही इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ ड्रैगन। यू हैव अ ड्रैगन, सेड द किंग, what will we do with her? She has made everything nice and warm, said Dom. अब जो किंग है ही आज की अरे तुम्हारे पास एक ड्रैगन है, हम इस ड्रैगन का क्या करेंगे? तो फिर डॉम ने बताया कि ये जो है सभी चीज़ों को नाइस एंड वार्म कर देती है, अच्छा और गर्म कर देती है, ठीक है। देन व्हाट दे हैव डिसाइडेड, नाउ वी विल सी इन द स्टोरी। The king made a big house for Glow in the town. The house had very big pipes,
डॉम टुक ग्लो टू द हाउस। अब किंग ने ग्लो के लिए एक टाउन में एक बड़ा सा हाउस बना दिया और उसमें ढेर सारे पाइप्स लगा दिए और डॉम जो है उस ग्लो को लेकर के उस हाउस में चला गया। सी अ वेरी बिग हाउस इज मेड एंड विद द पाइप्स। और अब ग्लो को लेकर के डॉम जो है यहाँ आ गया उस घर में। किंग ऑल्सो केम एंड द मम्मा ऑल्सो केम, ओके, to make glow settle over there. Next one. Glow made everything hot. The pipes took hot water to every house in the town. Everyone had nice warm towels too. अब जो है ग्लो जो है सभी चीज़ को गर्म कर दिया ना, और जो पाइप्स थी, जो पानी था उसको गर्म कर दिया। तो पाइप्स जो थी वो हॉट वाटर को सभी घरों में लेके गई और उनके घर सभी के घरों में नाइस वार्म टॉवल्स भी आ गए। ओके, सबके घरों में पाइप चला गया ना वहाँ से, बिग हाउस से जहाँ पे ग्लो रहती थी, एंड सो एवरीबडी गॉट द वार्म एंड नाइस वाटर। ओके, नाउ Glow made hot food for everyone in the town on nice warm plates. Glow was happy. Dom was happy too. But one day, Dom saw 3 little red eggs. Okay, now Glow जो है सबके खाने गरम कर दिए, वहाँ पे प्लेट्स भी गरम कर दिए, and everyone was happy in the town कि they are getting everything hot and nice. बट वन डे जब ग्लो उनसे मिलने गया, डॉम उनसे ग्लो से मिलने गया, तो उसने देखा कि 3 लिटिल एग्स फिर से वहाँ आ गए हैं। दैट मीन्स 3 more dragons will appear and again we have to make a big house, okay, for them. So 3 big houses are again will be a need of the town. Now we have here questions for you. Okay, how much do you remember about the story of Dom's dragon? Answer these questions and find out. Okay, ये questions के answer दोगे तो ही समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, so what color is the little egg that Dom finds? ये आपको क्वेश्चन आंसर जो है अपने रफ नोटबुक में लिखना है एंड राइट द आंसर टू। ओके, वेयर डज डॉम फर्स्ट हाइड द ड्रैगन? सबसे पहले डॉम ने ड्रैगन को कहाँ हाइड किया? कैन यू नेम 2 थिंग्स दैट ग्लो मेक्स नाइस एंड वार्म? कौन सी 2 चीज़ें हैं जिसको कि ग्लो नाइस एंड वार्म बना दिया था? ये आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डज द किंग मेक फॉर ग्लो? किंग ने ग्लो के लिए क्या चीज़ बनवाया था? ये आपको बताना है। ठीक है, आप इस स्टोरी को आप पीछे करके वीडियो को फिर से देख सकते हो एंड यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, एंड दिस इज द स्टोरी बुक. With this I am going to complete your story session. So children, I hope you enjoyed both the stories. The first one was Little Red Hen. Okay, इसमें आपने देखा ना, इसमें सीखा ना कि जो मेहनत करते हैं उनको ही सब कुछ मिलता है. So we need to work hard. Do we need to work hard? Okay, I hope you understood that we need to work hard to get something. Okay, nothing comes in air. Okay, कोई भी चीज़ हमको ऐसे ही नहीं मिल जाती है, हमको हर चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है. देखो लिटिल रेड हेन ने मेहनत किया तो उसको मिला ना ब्रेड. उसने बहुत मेहनत किया फिर उसे ब्रेड मिला ना. जिन्होंने मेहनत नहीं की उन्हें नहीं मिला. तो हमको अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वी नीड टू वर्क हार्ड. ओके, सो वी विल वर्क हार्ड टू गेट द things. Okay, next one was a Dom's dragon. Okay, if you will help somebody will also give you will be a beneficial to you. Okay, they will also help you in some or the other way. जब इस बॉय ने इस एनिमल की हेल्प की तभी तो इस एनिमल ने बॉय की भी हेल्प की, और सिर्फ बॉय की ही नहीं पूरे टाउन की हेल्प की. देखा आपने ना, तो वी शुड बी हेल्पफुल. Okay, this story tells that we need to be helpful not only for the human beings, even for the animals also. Okay,
and animals are really best friends. Okay. So with this I am completing the session. Hope you like this, and you will read again and again these two stories, and you will learn the importance of hard working and being helpful. Okay. So goodbye. Have a nice day. Stay safe. Stay at home. Stay safe and be happy and healthy. Goodbye.